Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, my viewers, my students. Welcome to our YouTube channel Learning with Shah. Students, today we are going to discuss the mathematics of 9th class. We are in chapter number 1 and we are solving its exercise number 1.1 and its question number 3. Question number 3 जो आपको given है आपकी टेक्स्ट बुक के अंदर वो है if A is a matrix of, ये आप देख सकते हैं कि इसके अंदर 4 जो है रोज हैं and 3 columns हैं. So this is a matrix of 4 by 3 order. ठीक है, यानी इसके अंदर 4 रोज और 3 कॉलम्स हैं. हमने स्टूडेंट क्या करना है स्टूडेंट्स कि हमने गिव द फॉलोइंग एलिमेंट्स, हमने बताना है कि A12 किसके लिए स्टैंड करता है. यहाँ पर अगर आप देखें एक मैट्रिक्स है आपके पास A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33. Now what do you mean by A11? A11 shows that entry which is included in the first row and first column. And A12 is that entry which is in the same row, that is first row, but in the second column. Similarly, A13 is that entry which is in the first row and third column, and so on. इस तरह से आप समझ सकते हैं कि A21 is the entry of second row and first column, second row and second column, second row and second column, and so on. So students, A12 we mean that entry of this matrix which is in the first row. हम हमेशा रोज को पहले लिखते हैं. ये देखिए मैंने ऑर्डर में भी रो को पहले लिखा है और कॉलम को दूसरे नंबर पर लिखा है. So 1 stands for the row and 2 stands for the number of column. So A12, let's see कि आपके पास फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम के अंदर कौन है? 2 है. ये आप देख सकते हैं. This is 2. ठीक हो गया स्टूडेंट्स. Now second part में कहता है A23. A23 we mean that entry which is in the second row. 2 stands for row and third column, second row and third column. तो second row and third column के अंदर स्टूडेंट्स कौन है? 0 है. सो हमने इस एंट्री को शो कर दिया. Now the next part number 3, A32 stands for the third row and second column. So this is the third row and this is the second column. तो दोनों के इंटरसेक्शन पे कौन मौजूद है? 1 मौजूद है. So A32 is 1. नेक्स्ट पार्ट में है A43. 4 stands for row, fourth row and third column. So fourth row आपके पास ये बनती है, आप देख सकते हैं 1, 2, 3 and 4. So fourth row के अंदर आपके पास और थर्ड कॉलम के अंदर फोर्थ रो एंड थर्ड कॉलम कौन है? 6 है. ठीक हो गया. So the next entry which we are going to detect is A13. 1 stands for row, that is first row, and 3 stands for the column, that is third column. So first row और third column के अंदर कौन है स्टूडेंट्स? -4 है. आप देख सकते हैं कि अगर हम फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम के अंदर आए तो आपके पास कौन सा एलिमेंट मौजूद है? यहाँ पे लिखा हुआ -4 है. Now students, the last part of question number 3 is A33. A33 stands for third row, third column, third row, third column. So this is third row, आपको पता है 1, 2 and 3, and third column, this is third column. तो कौन लिखा हुआ है यहाँ पर? 5 लिखा हुआ है. So students, यहाँ पर आपके पास जो एंट्री है वो यानी थर्ड रो एंड थर्ड कॉलम की जो एंट्री है वो कौन सी है? 5 है. आपकी टेक्स्ट बुक के अंदर जो आंसर है वो यहाँ पर 0 लिखा हुआ है. 0 इज इनकरेक्ट. क्यों इनकरेक्ट है? क्योंकि 0 हम ऑलरेडी इन्वॉल्व देख चुके हैं और रिपीट भी नहीं हुआ. आंसर 0 आ सकता था. अगर यहाँ पर 0 के नीचे भी 0 लिखा हुआ होता तो फिर डेफिनेटली हम 0 इसका आंसर लिखते, 0 एंट्री लिखते, बट अनफॉर्चुनेटली ऐसा है नहीं है. यहाँ पर 0 के साथ नीचे कॉलम में 5 लिखा हुआ है. सो इसका आंसर 5 बनना चाहिए. आप देख सकते हैं कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड रो है और थर्ड कॉलम के अंदर 5 लिखा हुआ है. आप बुक के अंदर भी चेक कर सकते हैं. बुक के अंदर भी जो क्वेश्चन आपको 3 दिया हुआ है उसमें ऐसा ही है. क्वेश्चन नंबर 4 इज अबाउट द इक्वल मैट्रिसेस. Which of the following matrices are equal? A, B, C, D हमें दिए हुए 4 मैट्रिसेस, हमने देखना है कि कौन सा मैट्रिक्स इसके इक्वल है.
So let's first of all define what are equal matrices. Equal matrices, the matrices are said to be equal if both the matrices are of the same order. Order same होना चाहिए, number of rows and number of columns उनका same होना चाहिए, that is they respectively have the same number of rows and columns. The second point जो हमने देखना है equal matrices के अंदर वो है the elements in the corresponding positions in A and B are equal. जो corresponding elements हैं यानी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम की एंट्री, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम की एंट्री, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम की एंट्री एंड सो ऑन, ये सारे corresponding elements कहलाते हैं और इनको सेम होना चाहिए. मकसद कहने का ये है कि इक्वल मैट्रिक्स तब होंगे जब हर एंट्री जो है एक मैट्रिक्स की दूसरे मैट्रिक्स के corresponding एंट्री के इक्वल होगी. सो लेट्स सी, वी हैव मैट्रिक्स A 2 5 1 3. पहली एंट्री इसकी 2 है, दूसरी 5 है, तीसरी 1 है एंड चौथी 3 है. सो देखते हैं आगे B C D में कौन सा ऐसा मैट्रिक्स है जो बिल्कुल जस्ट लाइक मैट्रिक्स A है. स्टूडेंट देखें आप, यहाँ पर पहली एंट्री 2 है, इसकी भी 2 है, तीसरी 5, दूसरी 5 है, इसकी भी 5 है, तीसरी एंट्री सेम नहीं है. सो B is rejected as equal matrix of B. So we go further, we move further. 1 plus 1 2 आता है, 3 plus 2 5 आता है. सो पहली दो एंट्रीज इक्वल आ रही है 2 और 5. यहाँ पर देखें तो 4 है, सो यहाँ पर भी कंट्रडिक्शन आ गई, यहाँ पे इक्वालिटी नहीं आ रही है, सो हम इसको भी छोड़ देते हैं. नेक्स्ट हम मूव करते हैं मैट्रिक्स डी की तरफ. तो यहाँ पर पहली एंट्री 2 है, इसकी भी पहली एंट्री 2 है, 4 plus 1 हमें पता है सम 5 आता है, सो डेफिनेटली 4 plus 1 is actually 5 and third entry is 1 and fourth entry is 3. So matrix A and D are absolutely equal matrices. 2 5 1 3 is equal to 2 5 2 4 plus 1, ये 4 plus 1 लिखा हुआ है which is actually 5 ही आता है. So हम कह सकते हैं कि matrix A, this is what 2 5 1 3, this is A, and this is what 2 4 plus 1 1 3, this is D. So A equal to matrix D. Similarly students आप देख सकते हैं कि B की तरफ हम जाते हैं, 2 5 तो ये भी 2 5 है, 4 3 तो ये भी 4 3, आप देख सकते हैं 2 plus 1 makes 3. So it means that कि matrix B is equal to matrix B is equal to matrix C. So in the second process, ये हमने फर्स्ट प्रोसेस था जिसमें हमने चेकिंग की थी. अब सेकंड प्रोसेस में जब हमने चेकिंग की है मैट्रिसेस की, तो हमें पता चला कि मैट्रिक्स B जो है वो 2 5 4 और 3 है, और यहाँ पर जो मैट्रिक्स C है 1 plus 1 और 3 plus 2 और 4 और 2 plus 1. तो हम देख रहे हैं कि ऑन सॉल्विंग बोथ दीज मैट्रिसेस, बोथ भी नहीं बल्कि राइट हैंड साइड पर अगर हम सॉल्व करें तो 1 plus 1 2 ही बनता है, 3 plus 2 5 बनता है, 2 plus 1 3 बनता है. Each and every entry of both matrices are equal, same. So that's why we can say that matrix C, this is matrix B, this is equal to matrix C. So students, वेरी सिंपल वेरी इजी सा क्वेश्चन था आपके पास. आपने इक्वल मैट्रिसेस देखने थे, हमने इक्वल मैट्रिसेस की डेफिनेशन को भी डिस्कस कर लिया और फिर उसके बाद हमने क्वेश्चन नंबर 4 को भी जो इसके अकॉर्डिंगली था हमने उसको भी सॉल्व कर लिया. यहाँ पर स्टूडेंट्स एक चीज़ आपको बताता चलूँ जो कि बहुत ज़रूरी है. जब कभी भी आप इस किस्म के मैट्रिसेस लिख रहे होंगे जिसके अंदर एंट्रीज जो हैं वो बाइनॉमियल टाइप या बाई टर्म्स रखने वाली, दो टर्म्स या दो से ज़्यादा टर्म्स रखने वाली हो, तो उनको लिखते हुए आपने एक एहतियात करनी है. वो एहतियात आपने ये करनी है कि आपने इसको कभी भी इस तरह से जोड़ के नहीं लिखना जहाँ पे आपके पास कंफ्यूजन क्रिएट हो रही हो. अब दिस इज एक्चुअली वन टर्म 24 plus 1 25 बन रहा है. आप 4 plus 1 को एक फेयर एनफ डिस्टेंस पे लिखेंगे ताकि समझने वाले को, चेक करने वाले को पता चले कि फर्स्ट एंट्री इज 2 एंड द सेकेंड एंट्री इज 4 plus 1. कौन सी टर्म किस में ऐड हो रही है. अगर आप में बीच में स्पेस नहीं देंगे, फेयर एनफ डिस्टेंस नहीं होगा, तो इसका कुछ और मतलब बन जाएगा. ये तो 24 plus 1 कंसिडर होगा. सिमिलरली जिसने यहाँ पर 1 plus 1 लिखा हुआ है, तो आप 1 plus 1 को भी दूसरी एंट्री से दूर करके लिखेंगे. ये ना हो कि आप इसको यूं लिखें इस तरह से, ये अब इनके दरमियान कोई डिस्टेंस नहीं है, तो ये 1 और ये 14 और ये 1 कंसिडर होगा. ये तो टोटली मीनिंग ही चेंज हो जाएगा. सो 1 plus 1 और 4 plus 1 के दरमियान एक फेयर इनफ डिस्टेंस होना चाहिए ताकि आप क्लियरली रिकॉग्नाइज कर सकें कि एंट्रीज जो है वो आपके सामने
आपने क्या लिखी हुई हैं, ताकि चेक करने वाले को भी बिल्कुल क्लियर हो कि इस लिखने वाले ने क्या लिखा है। सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4 हमने सॉल्व कर लिया है। इसके जो बाकी क्वेश्चंस हैं एक्सरसाइज के, मैथमेटिक्स ऑफ 9th क्लास एक्सरसाइज 1.1, वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियोस के अंदर डिस्कस करने जा रहे हैं। प्लीज़ वॉच माय वीडियोस, लाइक माय वीडियोस एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।